So now you can start. Okay, sir. Okay. Good evening to all. Mr. Mayank Mittal, Professor B.S. Tripathi, Asim Mukherjee, sir, Rajiv Gupta, sir, and dear participants. On behalf of IEEE MNIT student branch, I, Vivek Rajput, take this privilege to welcome you all. I appreciate your presence in this webinar from the core of my heart. The world's largest technical professional organization was founded in 1884 with a mission to foster technology innovation for the benefit of humanity. Today, in 160 countries, there are more than 80,000 student members. A student branch gives students the opportunity to meet, learn from fellow students and professionals in the field of IEEE. IEEE student branch are established at over 1,500 universities and colleges throughout the world. Our college is one of them. Student branch activities offer numerous educational, technical, and professional advantages of IEEE membership through special project activities, meetings, tours, and field trips. IEEE MNIT is a vibrant student branch. Currently, we have 8 active societies and over 60 student members. Collaboration, inclusive excellence, and collective efforts made IEEE MNIT student branch to reach new heights in terms of events and number of student members. Dear participants, before we start, there are few instructions which you all need to follow during this webinar. You are advised to mute your microphone and also please turn off your video. If you have any query or question regarding the talk, you need to write it in the chat box of Vivek meeting. And after the completion of the talk, Mr. Mayank will address those questions in the time allotted for question answer session. Now, I Asim Mukherjee sir for his blessings and to honor Mr. Mayank Mittal, Professor Asim Mukherjee sir. Thank you, Vivek. Dear Professor B.S. Tripathi sir, Professor Rajiv Gupta, Vivek, and my dear friends, students, Mayank Mittal was our students from 2011 to 2015. He passed out in 2015 with Institute Gold Medalist. He was all branch topper. Not only that, there is one thing very special with him, that he maintained 10 absolute 10 CPI third semester onwards, and that was outstanding. Apart from this, he was also involved in extracurricular activities. He was festival secretary of Avishkar. He was festival secretary of Kaldav also, and he proved his talent that he can handle academics and extracurricular both in equal magnitude. He was outstanding, and initially Mayank was he was little bit hesitant that whether he'll be able to do it or not. But once he just shouldered this responsibility, he shined like anything. He outsmarted everyone. In his curriculum, I mean academic sides, Mayank was selected in internships at Qualcomm. He was offered PPO also. He got offer from Qualcomm, but he joined ONGC because he has scored in GATE also. He cleared GATE. He joined ONGC, and when he was in ONGC, he prepared for Indian Engineering Service, and he ranked 1 in 2017. And then again, he appeared for Indian, I mean, he joined Railways. His CV is with us. Everybody knows. He will share with the juniors also. And then he joined Indian Railway, and after that, in 2018, he got Indian Civil Services selection with a rank of 105. So he bettered this rank in 2019 with 29. So now I think he is on the pedestal of joining Indian Civil Services, as he was saying. Mayank was also our in our institute. Means whenever any, I mean, most of the faculties, they know him because of his well behavior, his humble nature. He is a man down to earth. So we all welcome Mayank for this webinar, for his juniors, for his, I mean, when we just Professor B.S. Tripathi was the initiator, and when he told that we should just rope in our alumnus, then the name of Mayank Mittal came first. When he talked to him, immediately he said, yes, sir, I am ready to
address my juniors. So thank you, man. You are welcome here for this webinar. Thank you, And sir. I thank Professor B.S. Tripathi, sir, for arranging this talk, where as an alumni, you will address your juniors. Thank you very much. It is over to you, Mayank. So, good evening, everyone, and thank you very much, Asim sir, for such a nice introduction. It's a matter of privilege for me to be a part of this webinar, as in a just small duration of 5 years, I am here to deliver a talk on the topic that is opportunity for engineers in civil and engineering services. It's it is it's a dream of every student that one day he want to deliver a lecture in his own alma mater, and in just 5 years of time I got this opportunity. So for this I want to thank Asim Mukherjee sir, V.S. Tripathi sir, Rajiv Gupta sir, Basant sir, and faculty member of MNIT Allahabad, as well as IEEE student branch, for organizing such a nice webinar. Topic of today's webinar is opportunity for engineers in civil and engineering services. So the layout of the session will be such that first I will discuss what all are the opportunities for engineers in different fields, not just in engineering and civil services, but what are the opportunities in all the different fields. And after that, what we can do, especially as far as engineering service and civil services is concerned, like how to prepare if one has thought in this direction that okay, he has to clear engineering service or civil service. So what, how he should prepare and how he should utilize his college time to the best, so that just after passing out from the college they can get their desired field. As far as medium of this medium of communication in this webinar is concerned, I want to use a mixed language, Hindi as well as English. And if any of the aspirant, any of the participant has any problem with the language, then he can just message in the chat box so that I can accordingly change the language. And if you have any of the doubt regarding your career, regarding engineering services or civil services, then also you can post your doubt in the chat box. I will just go through that, and if possible, I will try to answer those questions. So, starting this session, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंजीनियर्स के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं. डेफिनेटली मतलब इंजीनियर्स के लिए आफ्टर बीटेक देयर आर प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बट रिक्वायरमेंट ये है कि इन 4 साल में बीटेक के, इफ यू आर इन द फर्स्ट ईयर देन यू हैव ऑल द 4 इयर्स टू थिंक, और अगर आप थर्ड ईयर में हैं देन यू हैव 2 इयर्स टू थिंक अबाउट योर गोल, अबाउट योर मिशन इन योर लाइफ. तो इन 4 साल में सबसे पहले हमें ये देखना है कि what are the different opportunities that are available for an engineer, and after that we have to match those opportunities with our aptitude. ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा सोचते नहीं है इस चीज के बारे में लेकर के, और एक भेड़ चाल की तरह कि ओके मेरे फ्रेंड्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो आई शुड आल्सो गो इन दिस डायरेक्शन ओनली. और इसमें कई बार क्या होता है कि हम जो अपना गोल चूज करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा प्लानिंग हमने नहीं की है, बहुत ध्यान नहीं दिया है, तो उस गोल चूज करने के साथ साथ क्या होता है कि हम कई बार एक गलत गोल चूज कर लेते हैं. हमारा एप्टीट्यूड उस डायरेक्शन में नहीं है, आवर इंटरेस्ट इज नॉट देयर, बट वी हैव जस्ट चूजन दैट गोल क्योंकि हमने उस पर मेहनत नहीं की है उस चीज को लेकर के. तो इससे क्या होता है, या तो डिजायर्ड आउटकम नहीं मिलता, और अगर डिजायर्ड आउटकम नहीं मिल भी जाता है तो देन इन दैट केस आल्सो वी आर नॉट हैप्पी विद दैट. सो सबसे पहला काम यही होता है कि वी नीड टू ब्रेनस्टॉर्म व्हाट आर द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर इंजीनियर. और हर फील्ड में, चाहे आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाएं, चाहे आप अपना कोई स्टार्टअप खोलते हैं, और यू आर गोइंग इन द गवर्नमेंट सेक्टर, और यू आर गोइंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड, हर सेक्टर में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं. अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो हमारी कॉलेज से जब 2011 से 15 के बैच में मैं था, उस टाइम मैंने देखा है कि मींस स्टार्टिंग फ्रॉम 8 लाख पर एनम टू अप टू 1.2 करोड़ पर एनम का पैकेज इसमें
लोगों को मिला है। सो प्राइवेट सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी हैं, बट डिपेंड करता है कि क्या हम उस डायरेक्शन में अपने आप को ओरिएंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक हमारे सीनियर थे जस्ट 2 बैच पहले, उदय जालान सर, तो उन्होंने अपनी कोडिंग को इतना परफेक्ट किया कॉलेज टाइम में ही कि 3rd और 4th ईयर में ही उन्होंने फेसबुक में 1.2 करोड़ पर एनम का पैकेज उस टाइम पर लिया था। सो चीज ये है कि सबसे पहले वी हैव टू डिसाइड कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है। इफ वी हैव टू गो इन ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा एप्टीट्यूड किस डायरेक्शन में है। हो सकता है हम इलेक्ट्रॉनिक्स के हों बट हमें कोडिंग में ज्यादा इंटरेस्ट आता हो सकता है हम सिविल के हों बट हमें किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज्यादा इंटरेस्ट आता हो। सो सबसे पहले देखना ये है कि व्हाट इज आवर इंटरेस्ट, और उसके बाद खाली ये देखने से काम नहीं चलेगा, वी नीड टू वर्क अपॉन दैट। अपना जो भी इंटरेस्ट है, अपना जो भी एप्टीट्यूड है, उस पर वर्क अपॉन करने के साथ साथ अब हमें देखना है कि व्हाट आर द डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन दैट सेक्टर, और उस करियर अपॉर्चुनिटी को हमें पाने के लिए किस हद तक मेहनत करनी है, दैट वी नीड टू सर्च। अगर मैं डिफरेंट सेक्टर्स की बात करूं जो इंजीनियर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, तो एक तो मैंने पहले बोला कि प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है, और उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर्स की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उनके किस टाइप के इंटरव्यूज होते हैं। काफी सारी कंपनी तो हमारे कैंपस में ही आती हैं प्लेसमेंट के लिए, उसके अलावा भी कई बार हम ऑफ कैंपस जाकर भी इंटरव्यूज दे सकते हैं। सो हमें सर्च करना पड़ेगा कि हमारे एप्टीट्यूड से मैच करते हुए कौन सी प्राइवेट कंपनी है और उसमें हम कैसे देख सकते हैं। आफ्टर दैट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप का भी आजकल अच्छा स्कोप है, वी कैन गो इन दैट डायरेक्शन ऑल्सो। स्टार्टअप के लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमारा माइंड जो है कितना रिसर्च ओरिएंटेड है, हम कितनी नई चीजें करते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आविष्कार होता है कॉलेज में, सो दैट आविष्कार इज जस्ट टू ओन योर टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल्स, है ना। ये आविष्कार सिर्फ इसी चीज के लिए है कि जो भी हम थ्योरेटिकल पढ़ाई कॉलेज में कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिकली कितना बढ़िया प्रोटोटाइप हम वहां पर दे सकते हैं। सो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए, कि अगर किसी स्टार्टअप को आपको खोलना है तो एक बहुत ही छोटे लेवल पे आप आविष्कार से ट्राई कर सकते हैं अपने स्टार्टअप के आइडिया को, एंड देन इफ दैट इज सक्सेसफुल तो आप उसको एक बड़े स्केल पर ले जा सकते हैं। आफ्टर दैट रिसर्च एंड हायर स्टडीज में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। यू कैन डू रिसर्च वर्क, यू कैन डू हायर स्टडीज, बट ये चीजें हमें पहले से ही देखना पड़ेगा कि इफ आवर एप्टीट्यूड इज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड हायर स्टडीज और रिसर्च, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली अपने सब्जेक्ट्स में से हमें ये देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट हमें ज्यादा सूट करता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और आप देखते हैं कि VLSI में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है और यू आर मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड कम्युनिकेशन, तो अब उस सब्जेक्ट को आपको थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहां पर रिसर्च या हायर स्टडीज में जाना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी जो स्किल्स हैं वो आपको बढ़ानी पड़ेंगी उसके अकॉर्डिंग। एंड आफ्टर दैट डेफिनेटली इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट, PSUs एंड सिविल सर्विसेज, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर मैं सिविल सर्विसेज की बात करूं तो लास्ट 10 इयर्स का अगर आप डेटा उठाकर देखते हैं, सिविल सर्विसेज UPSC की वेबसाइट पर भी डेटा पड़ा हुआ है, उसमें आप देखेंगे कि अराउंड मोर देन 50% ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर इंजीनियर्स। इंजीनियर्स का मतलब ये नहीं है कि उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट इंजीनियरिंग है वहां पर, बट इंजीनियर से मतलब है कि बैकग्राउंड इज इंजीनियरिंग। सो यू कैन सी देयर आर so many branches in the undergraduation and post graduation. Apart from engineering, there is art field, there is commerce field, there is economics, law and order is there, और भी कई सारी फील्ड्स हैं। बट देखते हैं कि 50% से ज्यादा इंजीनियर्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड है एज फार एज सिविल सर्विसेज इज कंसर्न। दैट मीन्स अपॉर्चुनिटी इज वेरी हाई फॉर इंजीनियर्स इन सिविल सर्विसेज ऑल्सो। एट द सेम टाइम इंजीनियरिंग सर्विसेज, हमें इंडिया की बेस्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज जॉब्स जो हैं वो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम से हमें मिलती हैं, बट रिक्वायरमेंट ये है कि हमें अपना जो ये 4 साल का पीरियड है कॉलेज का, इसको हमें कितने अच्छे से यूटिलाइज करना है, दैट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये 4 साल का पीरियड कैसे निकल जाता है ये हमें पता ही नहीं लगता है। हमने ढंग से यहाँ पर प्रिपरेशन नहीं की किसी भी चीज की, अपना गोल ही कोई सेट नहीं किया हुआ है। जब गोल सेट नहीं करेंगे तो प्रिपरेशन नहीं होगी, प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो जितना भी खाली टाइम है उसमें कुछ ना कुछ हम लीजर टाइम की तरह उसको स्पेंड करेंगे, या तो मूवी देख लेंगे या कुछ और पार्टीज कर लेंगे या कुछ इधर उधर खेल लेंगे।
बट एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी उसमें हम नहीं करेंगे उस चीज में। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है सेट योर गोल। आप अपना एक गोल फिक्स कीजिए। अच्छा, गोल में कई बार मेरे पास कई बार ये डाउट भी आता है कि सर हम इंजीनियरिंग सर्विस और सिविल सर्विस साथ साथ ट्राई करना चाहते हैं, या इंजीनियरिंग सर्विस और गेट साथ साथ ट्राई करना चाहते हैं। यस, देयर इज नो हार्म इन दैट। आप अपने एक से ज्यादा गोल रख सकते हैं। रीजन बीइंग, ये कभी भी सर्टेन नहीं होता हमें कि सपोज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज तो हमारा उसमें हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि हम डाइवर्सिटी ऑफ ऑप्शंस अपने सामने रखें। देयर इज नो हार्म इन दैट, बट उसके साथ ही ये देखना भी जरूरी है कि जितने डाइवर्सिटी ऑफ ऑप्शंस हमने अपने सामने रखे हुए हैं, क्या वो सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमने दो ऑप्शंस चूज कर लिए अपनी लाइफ में कि या तो हम ये अचीव करेंगे या ये अचीव करेंगे, बट दोनों के पाथ जो है वो 180 डिग्री अपोजिट है। अगर इस तरीके से कोई चीज होती है तो हम ना तो एक पाथ पे चल पाएंगे और ना ही दूसरी पाथ पे चल पाएंगे। तो लाइक सपोज अगर आप गेट और इंजीनियरिंग सर्विस दोनों साथ में देना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गिव बोथ ऑफ देम, क्योंकि गेट का सिलेबस थोड़ा कम है, इंजीनियरिंग सर्विस का सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, बट डेफिनेटली दोनों का सिलेबस कहीं ना कहीं ओवरलैप करता है। Similarly, if you want to give GATE, engineering service and civil services all three, then still you can do that. But in that case, you have to choose optional of your civil services as engineering subject. क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग सर्विस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिविल सर्विस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसके साथ क्या होगा कि अगर आपका ऑप्शनल सिविल सर्विस में कुछ और है तो तब बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए, बिकॉज सिविल सर्विस का अपना ही सिलेबस बहुत ज्यादा है। डू यू वांट टू से समथिंग? ओके फाइन, क्योंकि सिविल सर्विस का अपना ही सिलेबस बहुत ज्यादा है, एंड इफ यू आर चूजिंग अ डिफरेंट ऑप्शनल तो आप डेफिनेटली मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दो बोट में बैठे हुए हैं और दोनों की डायरेक्शन अलग अलग जा रही है। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज एक ये भी आती है हमारे साथ कि कई बार हम जो कॉलेज की स्टडीज हैं उनको साइडलाइन कर देते हैं बाकी चीजों को करने के साथ साथ। ओके, सबसे पहले एक गौरव कुमार का एक क्वेश्चन है, पहले मैं उसको एड्रेस कर देता हूं क्योंकि ये जो मैंने बोला है उसी के साथ है। He was saying, sir, you obtained job in private sector, then gave GATE, then ESC before going to IAS. So were you not sure about your future plan? Also, when and how did you decide that IAS is your final destiny? Okay, good. ठीक है, ये डाउट्स आपके माइंड में हो सकता है क्योंकि मैंने चारों में किया है। यहाँ पर कॉलेज में रहते हुए मेरी क्वालकॉम में जॉब लग गई थी, एंड आफ्टर दैट आई गेव गेट एग्जाम, देन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम एंड देन सिविल सर्विस एग्जाम। तो कई बार ये लगता है कि क्या मेरा गोल पहले से नहीं था किसी चीज को लेकर के, बट इस टाइम ये था कि जब व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर, देन उस टाइम पे सेकेंड ईयर के एंड में क्वालकॉम इंटर्नशिप के लिए आई थी उस टाइम पर। सो आई गेव इंटरव्यू इन द क्वालकॉम और वहां से क्वालकॉम में सिलेक्शन हो गया था इंटर्नशिप के लिए, जस्ट फॉर 2 months ऑफ इंटर्नशिप। वहां पर इंटर्नशिप में जाकर काम किया तो उस काम के बेसिस पे जो 2 months पे हम इंटर्नशिप में काम करते हैं उसके बेसिस पे दे गिव प्री प्लेसमेंट ऑफर, तो उन्होंने वहां पर मुझे प्री प्लेसमेंट ऑफर दे दिया था। सो दैट मीन्स एक ऑप्शन मेरा सिक्योर हो गया था, दैट वाज प्राइवेट सेक्टर, बट स्टिल मन में कहीं ना कहीं ज़ील थी कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। हाँ, डेफिनेटली आईएएस में जाने की मतलब ऐसा कोई मेरा गोल नहीं था या ऐसा मैंने सोचा नहीं था, बट हाँ गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का मेरा मन था। So I gave GATE examination when I was in the college itself. GATE examination मैंने कॉलेज के साथ ही दिया और उसके साथ ही ONGC में मेरा सिलेक्शन 2015 में ही हो गया था। So after joining ONGC, after that मैंने सोचा कि अब मैं इंजीनियरिंग सर्विस की प्रिपरेशन कर सकता हूँ। कॉलेज टाइम में मैंने इंजीनियरिंग सर्विस को एक अपना टाइम नहीं दिया था, स्पेशल टाइम नहीं दिया था, और यही शायद कोई वजह थी कि कॉलेज से 2 साल मुझे लग गए थे इंजीनियरिंग सर्विस के लिए, क्योंकि कॉलेज टाइम में मैंने सोचा नहीं था इंजीनियरिंग सर्विस देने के लिए बहुत ज्यादा, या उस लाइन में बहुत ज्यादा डेडिकेटेड नहीं था, तो इसीलिए 2015 की जगह 2017 में इंजीनियरिंग सर्विस मेरा क्लियर हुआ। तो वही चीज कहीं ना कहीं है कि शायद मेरा खुद का भी गोल उस टाइम इतना क्लियर नहीं था, तो वहां पर जो मेरी मिस्टेक्स थी, इसीलिए मैं आपको पहले से वो चीज बता रहा हूँ कि आप अचीव कर लेंगे उस चीज को, बट हो सकता है थोड़ा टाइम फ्रेम आपको ज्यादा देना पड़े उस चीज के लिए। सो जब
ONGC में था, देन आफ्टर दैट आई स्टार्टेड थिंकिंग फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज। तब वहां पर मेरा मन था कि आइदर इंजीनियरिंग सर्विस देना है या सिविल सर्विस देना है, इन दोनों में से कोई एक एग्जाम मुझे देना है। बट सिविल सर्विस के लिए अगेन मैं श्योर नहीं था कि क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा उसको लेकर के, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा था, प्रिपरेशन मेरी पहले से कुछ नहीं थी, और साथ ही साथ मैं जॉब में भी था। दैट्स व्हाई आई चोज इंजीनियरिंग सर्विस एट दैट टाइम। इंजीनियरिंग सर्विस चूज किया, उसका एग्जाम दिया 17 में, आई क्लियर दैट एग्जाम। इंजीनियरिंग सर्विस का जो रिजल्ट है वो सितंबर मंथ में आ जाता था उस टाइम पर, एंड सितंबर में रिजल्ट आने के बाद जो ज्वाइनिंग होती थी वो नेक्स्ट ईयर अगस्त में ज्वाइनिंग होती थी। तो मेरे पास 1 साल का टाइम था इंजीनियरिंग सर्विस का रिजल्ट आने के बाद। सो आफ्टर रिजल्ट ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज आई थॉट कि अब ये मेरे पास 1 साल का टाइम है, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं एंजॉय कर सकता हूँ अपने रिजल्ट के साथ कि इंजीनियरिंग सर्विस में अच्छा हो गया, फैमिली टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, लीजर टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, और आई कैन प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। Though I was not confident कि whether I will be able to clear civil services or not, but still मैंने प्रिपरेशन किया, क्योंकि 1 साल था, उसको खाली छोड़ के तो कोई फायदा नहीं है। मैंने प्रिपरेशन की, हार्ड वर्क किया, एंड देन आई अचीव 105 रैंक इन सिविल सर्विसेज ऑल्सो। सो ये कुछ ब्रॉडली मेरी जर्नी थी, और गौरव कुमार का क्वेश्चन भी था तो उसको भी मैंने कोशिश किया है कि क्लियर करूं यहाँ पर। तो इसी में मैं आपको ये बता रहा था कि वट एवर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज यू आर प्लानिंग, either you are planning engineering service, civil service, GATE, or any other competitive exam like GRE, MET, etc., but never miss your college studies, क्योंकि जो आप कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, जो ये 4 साल पढ़ने वाले हैं, ये आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए। कई बार ये होता है कि हमारा प्राइमरी फोकस जो कॉलेज पे होना चाहिए उससे हट जाता है, और उसके अलावा सेकेंडरी एक्टिविटीज पे हम बहुत ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं। दैट इज नेवर एडवाइजेबल। हम जहां पर भी हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आज हमारा जो प्राइमरी गोल है आप लोगों के लिए, दैट इज योर कॉलेज स्टडीज, दैट शुड बी योर प्राइमरी गोल। सपोज 2 साल बाद या 3 साल बाद आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं, देन योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, योर प्राइमरी वर्क इज सर्विंग दैट ऑर्गेनाइजेशन, सर्विंग दैट इंस्टीट्यूट। तो उसको छोड़ के अगर आप किसी दूसरी चीज के लिए 100% अपना दे देते हैं, दैट मीन्स somewhere or other you are neglecting one of your duty. So ये भी चीज उचित नहीं है। तो जब हम कॉलेज में हैं तो कॉलेज की जो स्टडीज है वही हमारे लिए प्राइमरी होगी, और उसके अलावा भी हमारे पास काफी सारा टाइम बचता है। कॉलेज में वी हैव एम्पल ऑफ लीजर टाइम, क्योंकि मैं तो स्पेस से गुजरा हुआ हूँ 4 साल, तो मुझे पता है कि कितना स्टडी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि क्लास के भी अराउंड 5 to 6 आवर्स हमारे क्लास में जाते हैं। उसके बाद अगर आप मैक्सिमम 2 या 3 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए भी रखते हैं, उसके अलावा भी 4-5 घंटे हमारे पास बचते हैं। सो क्यों ना उस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज किया जाए। तो चीजें ये हैं कि अगर हमारी स्ट्रक्चर्ड तरीके से हमने अपना टाइम टेबल बना रखा है पूरे ईयर का, तो किसी भी चीज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं लूज होती है तो फिर प्रॉब्लम आना स्टार्ट होने लग जाती है। जब फाइनल ईयर में मैं था, तो चूंकि पिछले 6 सेमेस्टर में कंटिन्यूअसली 10 पॉइंटर्स रहे हुए थे, तो सर ने मुझे कहा कि तुम आविष्कार के फेस्टिवल सेक्रेटरी बन जाओ। ये बात है लगभग सितंबर 2014 की। तो मुझे कहीं ना कहीं डाउट था कि क्या मैं अपनी स्टडीज के साथ कर पाऊंगा इसको या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि किसी भी फेस्ट का, चाहे वो आविष्कार हो या कलरव हो, उसका फेस्टिवल सेक्रेटरी बनना मतलब फुल टाइम आपको उस पर डिवोट करना है। कई बार तो रात के 2-3 भी बज जाते थे हमें ऑफिस में ही उसकी प्रिपरेशन करते हुए। तो मेरे पास 3 टास्क थे उस टाइम, बल्कि मैं कहूँ 4 टास्क थे। एक तो मुझे अपने 7 सेमेस्टर की प्रिपरेशन करनी थी, देन सेकेंड जो चीज थी वो थी कि आविष्कार का फेस्टिवल सेक्रेटरी अगर मैं बनता हूँ तो मुझे उसकी भी साथ में प्रिपरेशन करनी है। थर्ड जो चीज थी, मुझे गेट का एग्जाम भी देना था, क्योंकि गेट का एग्जाम जनवरी मंथ में होता है, तो मुझे उसकी भी प्रिपरेशन साथ में करनी थी। और फोर्थ, क्योंकि फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट भी होता है, तो उसके साथ साथ मुझे प्रोजेक्ट को भी देखना था। तो लेकिन चारों चीजें मतलब कहीं ना कहीं मैंने मैनेज की उसके साथ। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर हम ओरिएंटेड हैं किसी चीज को लेकर के, अगर हमारे गोल फिक्स हैं और उस डायरेक्शन में जो हमारी प्लानिंग है, जो हमारी स्ट्रेटेजी है, दैट इज करेक्ट, तो हम सारी चीजें इकट्ठे कर सकते हैं। बट द थिंग इज दैट कहीं ना कहीं तो हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 2 या 3 चीजें इकट्ठे लेकर चल रहे हो तो आपको अपने लीजर टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, फ्रेंड्स के साथ पार्टी टाइम के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा।
तो वो चीज अब आपको देखनी है कि व्हाट यू कैन कॉम्प्रोमाइज। कैन यू कॉम्प्रोमाइज योर पार्टी टाइम, कैन यू कॉम्प्रोमाइज योर जो मस्ती का टाइम है, क्या आप उसको कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? इफ यस देन इट्स गुड। अगर आप उसको नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार कॉलेज में एक इस टाइप का एटमोसफियर भी रहता है, क्योंकि कई बार फ्रेंड्स बोलते थे कॉलेज में कि यार ये 4 साल अगर मजे नहीं किए तो मतलब अपने लाइफ के आपने 4 साल मतलब जो है कि खराब कर दिए। यार तू तो पार्टी नहीं जा रहा है या यहाँ नहीं कर रहा है, तो मीन्स यू आर लूजिंग समथिंग। इन दैट केस इट इज यू हु हैज टू चूज योर प्रायोरिटीज, कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। एंड now I think you are 19 years or 20 years old, then you are mature enough to choose your priority, कि अब आपकी प्रायोरिटी लाइफ में क्या है। क्या मस्ती या पार्टी टाइम आपकी प्रायोरिटी है, या अपना करियर आपको बनाना है वो आपकी प्रायोरिटी है? दैट यू हैव टू चूज। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सारे टाइम हमें पढ़ना है या सारे टाइम ओरिएंटेड ही रहना है, नहीं, हमें हर चीज के लिए टाइम देना है। इवन मस्ती के लिए, लीजर टाइम के लिए भी टाइम देना है, बट दैट शुड बी लिमिटेड। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन पूरी रात उसी चीज में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना, देन इन दैट केस यू विल बी लूजिंग समवेयर और अदर। अच्छा, थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है स्पेशली उनके लिए जो इंजीनियरिंग सर्विस या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉलेज टाइमिंग में, या इवन सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनका ऑप्शनल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है। कॉलेज टाइम में कई बार ऐसा हमारे माइंडसेट हो जाता है या बन जाता है या रहता है कि जो कॉलेज में हो रही है दैट इज नॉट वर्थ, वो काम नहीं आने वाली है आगे। बट मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ ही कह सकता हूं कि चाहे इंजीनियरिंग सर्विस हो, चाहे गेट का एग्जाम हो, या सिविल सर्विस में ऑप्शनल की प्रिपरेशन हो, मुझे कॉलेज की बुक्स या कॉलेज के नोट्स के अलावा बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी है किसी भी चीज में। और मेरे आने के 1 साल बाद तो कॉलेज का जो सिलेबस का पैटर्न था वो भी काफी चेंज हो गया था। और अब अगर आप देखेंगे जो नया इंजीनियरिंग सर्विस का पैटर्न है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में मैं बोल सकता हूँ ये चीज, तो जितना भी सिलेबस इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का है वो कहीं ना कहीं वो पैटर्न आपको पूरा अपने कॉलेज सिलेबस से मिल जाएगा। अच्छा, इवन एक अच्छी बात तो क्या है कि आप देखेंगे कि जो कॉलेज में आपका एग्जाम का पेपर सेट होता है वो एक स्टैंडर्ड बुक से सेट होता है हमेशा ही। मतलब मैंने ये देखा था कि अगर कम्युनिकेशन है तो साइमन हैकिन से पेपर बन रहा है, अगर सिग्नल सिस्टम है तो ओपेनहेम से पेपर बन रहा है, अगर आपका कंट्रोल सिस्टम है तो वो भी आपकी कोई स्टैंडर्ड बुक से उठाकर पेपर बन रहा है, या फिर माइक्रोवेव इंजीनियरिंग है, एंटीना या वेव गाइड है, तो वो भी आपका जो है स्टैंडर्ड बुक से, बलनियास हो गई या आपकी जो दूसरी बुक है उसकी जेडी क्रॉस हो गई, वहीं से पेपर बनता है। आप देखेंगे कि अगर आप इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठाकर देखते हैं तो जो मैंने स्टैंडर्ड बुक्स आपको बोली हैं, आप अपनी ब्रांच के स्टैंडर्ड बुक्स खुद देख सकते हैं, तो उन स्टैंडर्ड बुक्स के कहीं ना कहीं सॉल्व एग्जाम्पल ही वहां पर उन्होंने पूछे हुए होते हैं। और इवन आप देखेंगे कि आपके कॉलेज के अगर आप 4 साल के पेपर इकट्ठे कर लें तो उनका जो पैटर्न है, जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, डिफिकल्टी लेवल है, कहीं ना कहीं वो आपको मैच करता हुआ मिलेगा इंजीनियरिंग सर्विस या सिविल सर्विस एग्जाम के पेपर से। तो जैसे कि अभी राहुल केसरवानी ने क्वेश्चन भी पूछा दैट हाउ डिड यू मैनेज टू सिक्योर AIR 1 इन ESC एग्जाम व्हाइल हैविंग जॉब एट ONGC? The only reason is that I have managed well in my college, क्योंकि कॉलेज में जो 6 साल या जो 6 सेमेस्टर, स्पेशली 6 सेमेस्टर की अगर मैं बात करता हूँ क्योंकि वो कोर सब्जेक्ट के सेमेस्टर थे, वहां पर अच्छे से पढ़ा है, उन सब्जेक्ट्स को अच्छे से किया हुआ है। तो ONGC के साथ रहते रहते मुझे सिर्फ इतना करना था कि जो मेरी बुक्स थी, जो मेरे नोट्स थे कॉलेज के, सिर्फ उनको रिवाइज करना था। मुझे एक्स्ट्रा पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी। और शायद यही रीजन था कि इंजीनियरिंग सर्विस के लिए मुझे कोचिंग की भी जरूरत नहीं पड़ी थी। सिर्फ इंटरव्यू गाइडेंस के लिए तो हाँ जरूर मैंने एक आध मॉक इंटरव्यूज दिए थे, बट एज फार एज प्रीलिम्स एंड मेंस ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम इज कंसर्न, मुझे कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ी। एंड रीजन फॉर दैट इज कि कॉलेज में जितने भी सब्जेक्ट्स थे उनको अच्छी तरीके से किया हुआ है। सो इन दैट केस आपका क्या होगा कि इफ यू आर एबल टू यूटिलाइज योर कॉलेज टाइम बेटर, यूटिलाइज इन बोथ सेंस, अगर आपका कोई गोल है आप उसको भी परस्यू कर रहे हो, साथ साथ कॉलेज की स्टडीज को भी परस्यू कर रहे हो, तो आपको जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स के एग्जाम है उनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन मैं तो ये कहूंगा कि आपके जो कंपनी आती हैं कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए, उनके भी आप एग्जाम के लिए उनके या
उनके इंटरव्यूज में भी आपको दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मैंने क्वालकॉम जब दिया था, व्हेन आई हैव गिवन एग्जाम ऑफ क्वालकॉम एंड इंटरव्यू इन सेकेंड ईयर, आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड एनीथिंग फॉर दैट। जस्ट जो कॉलेज का सेकेंड ईयर में जो प्रिपरेशन था, विद ओनली विद दैट प्रिपरेशन आई हैव गॉन इन द इंटरव्यू रूम, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो वहां से कहीं ना कहीं एड्रेस हो गए थे। अच्छा, इसके अलावा हाउ शुड यू प्रिपेयर फॉर दीज एग्जाम्स व्हाइल इन द कॉलेज? सो इसके ऊपर भी थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले, अगर आपने चूज कर लिया है कि ओके दिस इज योर गोल, या इस डायरेक्शन में आपको जाना है, हो सकता है बाद में चेंज हो जाए, बट स्टिल अगर आपने एक वेल डिफाइंड डिसीजन ले लिया है, देन जस्ट go through the syllabus. Suppose I start with the civil service exam. If you have decided that you have to give civil service exam after your final year, then what you should do, first start with the syllabus of the exam. आप सबसे पहले सिलेबस देखिए एग्जाम का क्या है, एंड अकॉर्डिंगली आप मटेरियल, सोर्स मटेरियल की तरफ सबसे पहले ध्यान दीजिए कि कौन सा सोर्स मटेरियल हमें चूज करना है, और उस सोर्स मटेरियल के साथ साथ अपना टाइम फ्रेम देखिए कि whether you are in second year, you are in third year, or you are in final year. Accordingly, you have to devote say X amount of time for that particular exam. Suppose आप second year में हैं, तो क्योंकि आपके पास second year में होने के साथ साथ आपके पास 3 साल हो जाएंगे, so इस केस में अगर आप थोड़ा कम टाइम भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए डिवोट करते हैं तो काम चल जाएगा। But if you are in third year, that means you have to give some more amount of time. Or if you are in final year, that means an extra amount of time. So suppose X hours per day you are giving in your second year. So in third year, you must be giving X plus Y hours. And in final year, you must be giving X plus Y plus Z hours. So वो depend करेगा कि आप किस year में हैं. Accordingly, आप एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना एक टाइम फ्रेम तैयार कीजिए कि ओके ये सिलेबस मुझे इतने साल में कंप्लीट करना है, और उसके अकॉर्डिंग पर डे 2 घंटे या 3 घंटे मुझे डिवोट करने हैं इस एग्जाम के लिए, और वो 2 या 3 घंटे हैं अपना मोस्ट कंसंट्रेशन के साथ उसको दीजिए और उसको कंटिन्यूअस रिवाइज करते चलिए। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। और अगर आप प्लानिंग के साथ नहीं चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है। प्लानिंग किस तरीके से करनी है, आपसे पहले माइनस कर दीजिए 24 आवर्स में से जो कॉलेज का टाइम है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करनी है तो मैं क्लास बंक करूंगा और क्लास बंक करके प्रिपरेशन करूंगा। ठीक है, ये XYZ सर हैं, अटेंडेंस नहीं लेते हैं क्लास में, या पेपर से अटेंडेंस लेते हैं, तो यहाँ प्रॉक्सी चल जाएगी और इस क्लास में मैं प्रिपरेशन कर दूंगा। दिस इज नॉट अ करेक्ट स्ट्रेटजी, है ना। इट मे लुक दैट इट इज एन इजी पाथ, क्योंकि इससे क्या है कि सपोज मैंने एक क्लास बंक कर दी तो एक क्लास में मुझे 1 आवर टाइम एक्स्ट्रा मिल गया अपनी सपोज मीन्स। हालांकि मैं क्लास बंक एक अच्छे कॉज के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने फ्यूचर के एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, बट स्टिल हमारा मतलब गोल करेक्ट हो सकता है, बट द पाथ दैट वी आर चूजिंग दैट इज नॉट करेक्ट, है ना। सो हमें एथिकली करेक्ट पाथ से चलना है हमेशा। सो इन दैट केस सबसे पहले कॉलेज आवर्स माइनस कर दीजिए अपने कि ओके ये 5 to 6 आवर्स कॉलेज में डिवोट करने हैं, ये मैंने 24 आवर्स में से माइनस कर लिए। उसके बाद जो अपने सेल्फ स्टडी का टाइम है, कॉलेज को जो देना है, जो कॉलेज की स्टडीज को देना है, उसको माइनस कीजिए। एंड आफ्टर दैट वट एवर टाइम रिमेनिंग इज देयर, उसमें से आप कुछ टाइम डिवोट कीजिए उस पर्टिकुलर एग्जाम की, उस पर्टिकुलर जो आपका फ्यूचर प्लान्स है उसकी प्रिपरेशन के लिए। प्लस इसके साथ साथ एक और चीज जो हमें ध्यान देनी है कॉलेज में, दैट इज योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जब तक आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम नहीं करेंगे, अचीविंग सक्सेस विल बी वेरी मच डिफिकल्ट इन दैट केस। सो पर्सनैलिटी ग्रूम कैसे हम करनी है? पर्सनैलिटी ग्रूम होगी अपना माइंडसेट चेंज करने से। मतलब माइंडसेट चेंज करने से मतलब कि एक ओवरऑल हमारी सॉफ्ट स्किल्स भी अच्छी हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हैं, थिंकिंग पर्सपेक्टिव भी अच्छा है, और एक जो हेल्थ है हमारी, जो एनर्जी लेवल है, दैट इज ऑल्सो गुड। तो इसके लिए थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, है ना। चाहे आप किसी स्पोर्ट्स में वो फिजिकल एक्टिविटी दें, चाहे आप उसको योगा की तरह फिजिकल एक्टिविटीज को लें, आप जिम कर लें, कॉलेज में जिम खाना भी है, अच्छी जिम है, यू कैन यूटिलाइज दैट ऑल्सो। सो डिवोट 1 hour डेली, एटलीस्ट हाफ आवर डेली एटलीस्ट फॉर सम फिजिकल एक्टिविटीज। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज के लिए जब भी हम अपना टाइम डिवोट करते हैं, इट हैज
अ गुड अमाउंट फिजिकल एक्टिविटीज के लिए जब हम अपना टाइम डिवोट करते हैं, सो इट हैज ए लॉट ऑफ एडवांटेजेस। पहला एडवांटेजेस क्या है कि आपका जो माइंड है वो काफी रिलैक्स रहने वाला है, जो एंग्जाइटी है, जो डिप्रेशन है अगर किसी चीज का, तो वो आपका अपने आप कम हो जाएगा। सेकेंड, फिजिकल एक्टिविटी अगर इंटैक्ट रहती है, इफ वी आर कंटिन्यूइंग, इफ वी आर कंसिस्टेंट इन आवर फिजिकल एक्टिविटीज, देन इन दैट केस जो हमारा एफिशिएंसी लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। बाय एफिशिएंसी लेवल आई वांट टू से दैट, सपोज कई बार हमारी ये दिक्कत होती है कि हम 3 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा, क्लास में बैठे हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है ना, या कुछ चीज कर रहे हैं तो वो इफिशिएंटली नहीं कर पा रहे, जहां 1 घंटा देना चाहिए उस चीज को, वहीं उसी चीज को हम 3 घंटे दे रहे हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इफिशिएंसी लेवल कम है, पर्सनैलिटी में ग्रूमिंग उस लेवल की नहीं है। सो वो चीज कहाँ से आएगी? वो चीज आएगी फिजिकल एक्टिविटी से। इफ यू आर फिजिकली फिट, है ना, इफ यू आर एनर्जेटिक, देन यू कैन अचीव थिंग्स इन ए मोर एफिशिएंट, इन ए मोर डिजायरेबल मैनर। सो उसके लिए भी टाइम दें, और उसके साथ साथ लीजर टाइम के लिए भी टाइम दें, थोड़ा बहुत बाहर जाने के लिए, पार्टी टाइम, दैट ऑल्सो यू कैन डिवोट, बट वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक जाइए, आप बाहर घूमिए, माइंड फ्रेश कीजिए, अपने कलीग से बात कीजिए, दैट इज गुड, बट लिमिट दैट टू द आवर्स डिजायर्ड, है ना। ऐसा नहीं है पूरे दिन पूरे टाइम उसी चीज को कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, थोड़ा सा उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। इफ यू आर थिंकिंग इन दिस डायरेक्शन कि इधर गेट की प्रिपरेशन करनी है और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, देन बिलीव मी इट इज इजी, इट इज नॉट टफ। क्यों? रीजन इज दैट जो सिलेबस हमारे कॉलेज का है, क्योंकि मेरे हिसाब से सिलेबस चेंज नहीं हुआ होगा, और अगर हुआ भी होगा तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में ही चेंज हुआ होगा कॉलेज में सिलेबस। सो जो कॉलेज का सिलेबस है दैट इज समवेयर और अदर ओरिएंटेड, मतलब वो ओरिएंट है किस डायरेक्शन में कि आपका एक ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए। अगर आप इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का सिलेबस उठाकर देखेंगे, सो दैट विल बी ए सबसेट ऑफ योर कॉलेज सिलेबस ओनली, है ना। तो अगर आप उसको ढंग से प्रिपेयर कर रहे हैं अपने कॉलेज के सिलेबस को, तो गेट और इंजीनियरिंग सर्विस तो आप डेफिनेटली कॉलेज के साथ वाले ईयर में ही कर सकते हैं। द ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट आपको करना क्या है इस केस में, सपोज यू आर इन थर्ड ईयर, तो अपने कॉलेज के सिलेबस के साथ साथ आपको जो प्रीवियस 2 सेमेस्टर में आपने पढ़ा हुआ है उसको साथ साथ रिवाइज करना है। दिस इज द ओनली रिक्वायरमेंट। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा अलग से कहीं कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप कॉलेज का सिलेबस फॉलो कर रहे हैं रिलीजियसली, देन इन दैट केस आप उसको मैनेज कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू रिवाइज द प्रीवियस सेमेस्टर सब्जेक्ट्स, और साथ साथ एक बार इंजीनियरिंग सर्विस का सिलेबस भी उठाकर देख लें। इफ सपोज 1 या 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके कॉलेज में कहीं छूट गए हैं, या कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं क्लास में नहीं हुए हैं, then for that topic, for those subjects, you can refer some reference book. Even faculty in the MMIT are the best guide. अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारे टाइम पे जो फैकल्टी थे, राजीव गुप्ता सर थे, या मुखर्जी सर थे, या कृष्णा राव सर थे, या बाकी जितने भी फैकल्टी वहां पर थे, उन्होंने काफी अच्छा गाइड किया होता कि कैसे, मतलब somebody has unmuted his mic, so I request him to please mute his mic so that this disturbance can be avoided. Okay, so राजीव सर ने भी उस टाइम काफी हेल्प की, इवन उन्होंने बुक्स भी प्रोवाइड की कि आप कैसे इस चीज को देख सकते हो। जो प्रीवियस एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने पहले क्लियर किया था उनका भी नंबर दिया था। सो इन एनी केस अगर आपको कोई भी डाउट है अपने करियर को लेकर के, तो आप अपने जो फैकल्टी हैं, आपके मेंटर हैं, उनसे कभी भी डिस्कस कर सकते हैं। दे आर ऑलवेज ओपन टू हियर योर डाउट्स, है ना, और वो आपको बेस्ट पॉसिबल वे में गाइड भी कर देंगे उस चीज को लेकर के। तो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट जो प्रीवियस सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं उसको आपको रिवाइज करना है, और अगर कोई नया सब्जेक्ट है इन केस, तो उसको आपको एक रेफरेंस बुक लेकर के उसको पढ़ना है। अच्छा, साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इधर गेट, इंजीनियरिंग सर्विस और सिविल सर्विस, एक चीज आपकी एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी कि कोई ना कोई एक अगर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लेते हैं, है ना, तो इन दैट केस आपका पाथ थोड़ा सा इजी हो जाएगा। वाई? क्योंकि टेस्ट सीरीज से क्या होगा, यू विल बी एबल टू इवेल्युएट योरसेल्फ, है ना, आप अपने आप को इजीली इवेल्युएट कर पाएंगे उस केस में कि
आपकी जो प्रिपरेशन है वो राइट डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही है। ठीक है, सो ये एक बेसिक था जो मैं आप लोगों को एक बार देना चाहता था कि मैं एक बार इसको छोटे से मैं रिवाइज कर देता हूं जो मैंने बोला है। द फर्स्ट थिंग इज दैट यू रिवाइज, यू डिसाइड योर गोल, है ना, कि आपको करना क्या है अपने एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग। जो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं इंजीनियर्स के लिए, उनमें से एक अपना आप एक गोल चूज कीजिए एंड देन उस गोल के अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग कीजिए कि कैसे साथ में आपको आगे प्लान करना है। एंड आफ्टर दैट प्लानिंग करने के बाद अब उस डायरेक्शन में आपको बढ़ना है आगे, और साथ साथ जो कॉलेज की प्रिपरेशन है उसको नहीं छोड़ना है, उसको साइडलाइन नहीं करना है। एंड द लास्ट थिंग, यू हैव टू ग्रूम योर पर्सनैलिटी, आपको अपनी सॉफ्ट स्किल भी डेवलप करनी है, आपको अपना एनर्जी लेवल भी बूस्ट करना है। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड and now the session is, I think, open for the questions. If you have any doubt, then you can ask in the chat box, or I'll try to answer your doubts. Okay, one doubt is there from Gaurav Kumar is that, sir, now that you will become IAS, do you think all your ECE knowledge will go unutilized? See, Gaurav, let me tell you one thing. एजुकेशन या स्टडी एक ऐसी चीज है जो कभी भी अनयूटिलाइज नहीं रहती है ना। ये चीज एक ऐसी है जो समय के साथ प्रोग्रेस करती है या बढ़ती है ना। ऑल अदर असेट्स दैट यू हैव, whether it is money, whether it is gold, whether it is land or any other movable asset, they all degrade with time, है ना। सारे असेट का क्या होता है कि जितने भी असेट हमारे पास मटेरियल असेट हैं, they all degrade, बट एजुकेशन या स्टडी एक ऐसी चीज है कि इट इंक्रीजेस विद टाइम, है ना, और ये कभी भी अनयूटिलाइज नहीं जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सिंस यू हैव आस्क्ड एन स्पेसिफिक क्वेश्चन दैट यू हैव बिकम IAS, डू यू थिंक ऑल योर ECE knowledge will go unutilized? No, never. Reason is that in IAS, what you have to do, you are there at the top of administrative services. In the initial 15 years of your life, you have to deliver, you have to implement the policies that are designed at the top level, and in the later 15 years of your life, an IAS is at the policy making arena. So what we have to do, suppose I am talking about the initial 15 years or initial 20 years, then in that case we have to deliver efficiently. तो हमें सोशल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, उसके लिए हम अपनी इंजीनियरिंग की नॉलेज को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, दैट इज आवर टास्क, है ना। हमें किसी विलेज में, किसी एरिया में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, मतलब आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना स्कोप हो गया है, इंटरनेट ऑफ थिंग है, मशीन लर्निंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, एज कंप्यूटिंग है ना। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि इसमें सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया में, इकोनॉमिक अरीना में, एनवायरमेंटल अरीना में हम इतने पाथ ब्रेकिंग चेंजेस कर सकते हैं इन एक्टिविटीज को लेकर के। डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि मैं ECE का हूं तो मैं कुछ रिसर्च वर्क करने लग जाऊंगा, बट यस, सिंस बीइंग ए ECE ग्रेजुएट, हमेशा एक टेक्नोलॉजी का जो एप्रिसिएशन है वो मेरे माइंड में रहेगा। तो कोई भी चैलेंजेस है हमारे डिस्ट्रिक्ट के, हमारे विलेज के, देन आई विल ऑलवेज ट्राई कि उसमें कुछ टेक्निकल वे में मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ उसको, है ना। चाहे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी चैलेंजेस हैं, तो क्या उस एग्रीकल्चर को स्मार्ट एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं? इफ यस, व्हाट आर द ऑप्शन अवेलेबल? सो इन दैट केस आई विल बी एबल टू यूटिलाइज माय ECE नॉलेज इन दिस फील्ड आल्सो। Okay, there is a question from Ayush Aman that how to start for engineering optional if in second year now to level ourselves with the standard of UPSC at this stage. Okay, fine. In this case again, engineering optionals की बात करूं अगर UPSC लेवल की, तो UPSC एग्जाम का जो लेवल है that is same as your college exam, even lesser, है ना। कॉलेज एग्जाम से थोड़ा सा कम लेवल आपको मिलेगा UPSC के एग्जाम में, कॉलेज के क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा टिपिकल होते हैं। So what you have to prepare, first go through the syllabus of that particular engineering optional. Say you are from electronics background and civil service के केस में आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, that is electrical engineering. जस्ट आप चेक कीजिए कि आपकी ब्रांच में कौन कौन से सब्जेक्ट कवर अप हो गए हैं उसमें और कौन कौन से बचे हुए हैं। तो जो सब्जेक्ट आपके कॉलेज में कवर अप होने वाले हैं उनमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। व्हाट यू हैव टू डू, आपको सिर्फ कॉलेज की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, आफ्टर दैट यू हैव टू रिवाइज देम कंटिन्यूअसली। उसके अलावा वो सब्जेक्ट जो कि आपके कॉलेज टाइम में नहीं हुए हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग सिविल सर्विस में क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए ऑप्शन है
they can give exam from electrical engineering only. तो हो सकता है एक दो सब्जेक्ट लाइक पावर सिस्टम ऐसा हो सकता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं कराया जाता होगा. सो फॉर दोज सब्जेक्ट्स आप एक्स्ट्रा बुक, रेफरेंस बुक रेफर कर सकते हैं उन सब्जेक्ट्स के लिए और उनको रिवीजन कर सकते हैं. बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट की रिक्वायरमेंट उस केस में नहीं पड़ेगी. ओके, आयुष शमन का एक क्वेश्चन है, हाउ टू स्टार्ट फॉर इंजीनियरिंग ऑप्शनल. ओके, ये मैंने कर दिया है क्लियर, फाइन. राहुल केसरवानी का एक और क्वेश्चन है, सर यू हैव सेड दैट यू डिड प्रिपरेशन फॉर ESC राइट फ्रॉम द कॉलेज एंड दैट वाज हेल्पफुल, but what was the strategy for CSC preparation while having job in Indian Railways? Okay, Rahul, I have already told you that result of civil. One second. Okay, result of engineering service came in the month of September 2017, and after that I have 1 year, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विस की जो ज्वाइनिंग होती है, जो रेलवे की ज्वाइनिंग होती है, वो अगस्त मंथ में स्टार्ट होती है. सो दैट ज्वाइनिंग वाज इन अगस्त 2018. तो इसके बीच में मेरे पास 1 साल था. तो जो मेरी प्रीवियस जॉब थी ONGC से, वहां पे मैंने लीव उस जॉब से रिजाइन कर दिया था. और ये जो 10 मंथ का जो टाइम था, 10 मंथ टू 12 मंथ्स, इस टाइम को मैंने फुली डिवोट किया था सिविल सर्विसेज के लिए. और इस टाइम में एक बेसिक प्रिपरेशन कर ली थी. एंड आफ्टर दैट व्हाइल इन रेलवेज, अब एक बार जब बेसिक प्रिपरेशन हो जाती है, बेसिक चीजें सारी कवर अप हो जाती हैं, देन इट इज इजी टू मैनेज विद द जॉब. Okay, Aditya Srivastav has one question, that sir, how did you prepare for the subject of ESC which are not a part of ECE, like measurement, material science, electrical, etc.? What was your strategy for preparing advanced electronics, advanced communication, coding portion of computer organization asked in ESC? Okay, good. Let me tell you one thing. Measurement, material science, ये जो दोनों हैं, ये आपके कॉलेज में कवर होते हैं. एक डेडिकेटेड सब्जेक्ट मेजरमेंट भी कॉलेज में है ECE वालों के लिए, और मटेरियल साइंस आई थिंक 3rd सेमेस्टर में कवर अप होता है. आपको वही चीज उसी नोट्स को प्रिपेयर करना है, एडिशनल रिक्वायरमेंट की नहीं है. इवन मटेरियल साइंस में तो बहुत कम पोर्शन उसमें से आता है जो कॉलेज में कवर होते हैं. मतलब कॉलेज में बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं मटेरियल साइंस में, यहाँ पे थोड़ा कम पूछा जाता है. उसके अलावा जो बात है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स की एंड एडवांस कम्युनिकेशन की, लेट मी डिस्कस फर्स्ट एडवांस कम्युनिकेशन. इन एडवांस कम्युनिकेशन व्हाट इज आस्क्ड इन engineering services, one is data communication and networking, that will be covered in your 7th and 8th semester. If you have covered your data communication and networking in 7th and 8th semester holistically, then I think no other extra book is required for engineering service. Apart from that, microwave engineering is asked in advanced communication. Microwave and antenna जो है वो आपका 5th and 6th semester में cover up हो जाएगा. And optical communication is asked. हमारे टाइम में ऑप्टिकल कम्युनिकेशन एक प्रोफेशनल इलेक्टिव होता था, और अब आई थिंक मुझे नहीं पता प्रोफेशनल इलेक्टिव है या इसको कंपलसरी कर दिया गया है. बट स्टिल अगर आपको इसी डायरेक्शन में जाना है तो यू कैन चूज योर प्रोफेशनल इलेक्टिव अकॉर्डिंगली. एज फार एज एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स इज कंसर्न, माय आंसर इज डेडिकेटेड टू दिस आदित्य श्रीवास्तव. एज फार एज एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स इज कंसर्न, इसका सिलेबस भी आपके कॉलेज में कवर अप हो जाता है. एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में मोस्ट जो पोर्शन है वो VLSI फैब्रिकेशन का पोर्शन है. तो VLSI फैब्रिकेशन जो आई थिंक 6th सेमेस्टर में कवर अप हो जाता है कॉलेज में, वहीं से आपको उसमें से चूज करना है. उसके अलावा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा सा मॉसफेट से सर्किट डिजाइनिंग का पूछते हैं, जो कि 8th सेमेस्टर में कवर होता है CMOS डिजाइन का. तो वो पार्ट एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में है. उसके अलावा थोड़ा बहुत FPGA वगैरह पूछते हैं. अगर वो आपका कॉलेज में कवर अप नहीं होता है FPGA, देन फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक यू कैन रेफर एन रेफरेंस बुक. और जो कोडिंग पोर्शन और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, अगेन मैं यही कहूंगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटाबेस मैनेजमेंट का मुझे क्लियर नहीं है कि ECE के सिलेबस में कॉलेज में है या नहीं है. बट स्टिल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हमारे टाइम में 5th सेमेस्टर में कवर अप होता था, तो वही कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर पूछा जाता है. So I think most of the part is being covered up in the college. Just check your college syllabus first, and after that जो थोड़े बहुत टॉपिक आपके बचेंगे उसके लिए आप रेफरेंस बुक रेफर कर सकते हैं. In that case, Dipanshu's question is that, sir, how do you prepare for GATE? Please give some tips to prepare side by side. Okay, GATE preparation के लिए एक ही टिप है. अगेन 1 second. Okay, गेट प्रिपरेशन में, गेट में जितना भी कवर होगा वो सब कॉलेज में कवर हो जाएगा. यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है.
आपको सिर्फ एक काम करना है कि प्रीवियस 15 ईयर्स या प्रीवियस 20 ईयर्स की गेट की बुक ले लीजिए, उसको साथ साथ कवर करते रहिए, उसके क्वेश्चन सारे लगा लीजिए, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि गेट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, जस्ट यू हैव टू रिवाइज द प्रीवियस सेमेस्टर सब्जेक्ट. सपोज यू आर इन द 5th सेमेस्टर एट प्रेजेंट. अगर आप 5th सेमेस्टर में हैं अभी, तो आपको क्या करना है कि जो 3rd और 4th सेमेस्टर में सब्जेक्ट कवर अप हुए हैं उनको साथ साथ रिवाइज करना है, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको गेट के लगाने हैं. इतना करने के बाद इफ टाइम परमिट्स तो आप कोई एक टेस्ट सीरीज गेट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं. दैट विल बी बेस्ट फॉर यू. कुमार मोहित has asked a question. Please everybody go through the link provided below for okay fine. Shivani Tripathi, sir, how to prepare for UPSC CSC while doing a job? I have a job offer from Oracle as software engineer. How to prepare side by side? Okay, शिवांशु, लेट मी टेल यू वन थिंग कि अगर अभी आपके पास 1 साल कॉलेज का है, सो आप क्या कीजिए, I am assuming that you are in the final year. Okay, since you have a job offer, so you must be in the final year. What you have to do in this 1 year, just cover your basics of CSC. At least सारे सब्जेक्ट को आप एक बार कवर अप कर लीजिए. कॉलेज में आपको इतना टाइम मिल जाएगा कि आप एक बार CSC का सिलेबस कवर अप कर सकते हैं, है ना. उसके बाद आपको क्या करना है, किसी भी कंपनी में जो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं होते हैं, है ना. सो इन दैट केस आप उन 6 मंथ्स में भी अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं. जैसे जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, शुरू के मंथ्स में हेडेक कम होते हैं, शुरू के मंथ में आपसे एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सपेक्टेशन, आपकी जॉब प्रोफाइल, आपका काम बढ़ेगा, है ना. सो इफ यू आर एबल टू क्लियर योर एग्जाम इन द इनिशियल मंथ्स, इन द इनिशियल ईयर ऑफ योर जॉब, देन मीन्स इट विल बी इजी. और अगर जैसे आपको 1 या 2 साल हो जाएंगे जॉब में, तब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा जॉब पे साइड बाय साइड प्रिपेयर करना. Avinash Singh has asked which optional should be prepared for UPSC ECE candidate. Again, in this case, optional choose अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपको यही देखना पड़ेगा कि क्या आप ECE अगर ग्रेजुएट हैं तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ऑप्शनल दे सकते हैं या नहीं दे सकते. मीन्स if you have a good command over engineering subject, then definitely you can give it through engineering optional. लेकिन अगर आपकी कमांड अच्छी नहीं है और इंटरेस्ट अच्छा नहीं आता है इंजीनियरिंग से, देन यू कैन चूज अदर ऑप्शनल्स आल्सो. सो ये आपको खुद को ही डिसाइड करना पड़ेगा कि ऑप्शनल क्या चूज करना है. अगर इंजीनियरिंग कमांड अच्छी है, देन यू कैन गो विद द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एज एन ऑप्शनल. अदरवाइज मैथमेटिक्स इज आल्सो ए गुड ऑप्शन. मार्क्स भी अच्छे आते हैं मैथमेटिक्स में, इट्स ए स्कोरिंग सब्जेक्ट. यू कैन चूज दैट आल्सो. और अगर दोनों ही बात नहीं बन रही है, देन इन दैट केस फर्स्ट गो थ्रू द जीएस पार्ट ऑफ सिविल सर्विस एग्जाम. आप जीएस पार्ट की प्रिपरेशन कीजिए, और उसमें से जो सब्जेक्ट आपको, से ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, जो सब्जेक्ट्स में आपको लगता है कि आपको इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है, यू कैन चूज दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट एज एन ऑप्शनल. Okay, sir. Kajal has one question, sir. Which is the easiest and most scoring optional subject in UPSC? Okay, easiest जो है आपका, that depends on you, है ना. किसी के लिए हो सकता है X सब्जेक्ट इजी हो सकता है और किसी के लिए Y सब्जेक्ट इजी हो सकता है ना. तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. बट स्टिल सिंस यू हैव आस्क्ड, देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स जिनका सिलेबस बहुत कम है, लाइक सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी, है ना. ये 3-4 सब्जेक्ट हैं जिनका सिलेबस काफी कम है, और इसीलिए शायद इनको इजी बॉल भी देते हैं. तो आप ये देख सकते हैं, इनको चूज कर सकते हैं. जहां तक मोस्ट स्कोरिंग बात आती है, तो एवरी ऑप्शनल हैज ए रेंज ऑफ मार्क्स, है ना. हर ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स भी आते हैं और हर ऑप्शनल में खराब मार्क्स भी आते हैं. ओके, लाइक एंथ्रोपोलॉजी सपोज आप चूज करते हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी में 370 भी गए हुए हैं 500 में से, और उसी एंथ्रोपोलॉजी में 165 भी लोगों के आते हैं, है ना. सो स्कोरिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है. हो सकता है आपने एक पर्टिकुलर एक्स सब्जेक्ट चूज कर लिया कि ये स्कोरिंग है, और आपके मार्क्स नहीं आए उसमें, तो आपके लिए तो वो स्कोरिंग नहीं रहने वाला है. So I think this should not be a criteria to choose optional कि whether this particular subject is scoring or not, है ना. The criteria for choosing optional should be whether you have interest in that particular subject or not. If you have interest in that subject, then whether you have a basic command over that subject or not. अगर दोनों हैं, then choose that subject. Otherwise, don't go with that subject.
Shivanshu has asked one more question. Sir, shall we start giving mocks after our course is completed? What is the correct point of time in preparation for that? Okay. Yes, जो मॉक के लिए करेक्ट टाइम होता है वो है आफ्टर वन रिवीजन, है ना। आप अपने सब्जेक्ट्स को एक बार प्रिपेयर कर लें पहले पूरा, मतलब फर्स्ट रीडिंग कर लीजिए एंड आफ्टर दैट रिवाइज इट फॉर द फर्स्ट टाइम। आफ्टर फर्स्ट रिवीजन यू कैन गो फॉर द मॉक। अब वो फर्स्ट रिवीजन आपका कब कंप्लीट होता है दैट इज अप टू यू। आप अपना टाइम फ्रेम कुछ इस तरीके से डिसाइड कीजिए कि आप रिवीजन भी साथ साथ कर रहे हैं और स्टडी भी साथ साथ कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट टाइम रीडिंग भी साथ साथ कर रहे हैं, एंड आफ्टर फर्स्ट रिवीजन you can give your mocks. Sonu Kumar Gupta has one question, that sir, how to prepare for UPSC CSE? Please give some tips and name of some important books. Book list I have shared on my social media platform, you can go with that. मेरी वीडियोस भी हैं एक आध बुक लिस्ट के ऊपर पे, आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अगेन बुक लिस्ट बताने लगूंगा तो इट विल टेक एडिशनल 1 hour, so I will not go in that direction. And preparation कैसे करनी है that I have already explained. Pratik Raj has a question that, sir, how to prepare for GS being a technical student? Yes, this is a good question because as a technical student we do not have know-how of GS subjects, है ना। So GS subjects को prepare करने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें आंसर राइटिंग अपनी improve करनी है ना, क्योंकि हमारी जो आंसर राइटिंग है वो मोस्टली टेक्निकल सब्जेक्ट की तरफ ओरिएंटेड है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग की तरफ ओरिएंटेड रहती है। तो हमको क्या करना है इस केस में कि आंसर राइटिंग अपनी इंप्रूव करनी है, ताकि जो 100 वर्ड्स में, 150 वर्ड्स में, 200 वर्ड्स में हम कैसे अच्छा आंसर लिख सकते हैं। वो इंप्रूव कैसे होगी, न्यूज़पेपर सबसे पहले तो, क्योंकि इंग्लिश में कहीं ना कहीं वीक हो जाते हैं हम लोग, उस टाइप की इंग्लिश नहीं होती है जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स को लिखने के लिए चाहिए होती है। तो एक तो न्यूज़पेपर का कंटिन्यूस टच हमें चाहिए होता है, एक अच्छा न्यूज़पेपर इधर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, यू कैन गो विद दैट। और उसको आप कोशिश कीजिए कि कॉलेज क्लास में जाने से पहले, है ना, सपोज आपकी क्लास 9 बजे से स्टार्ट होती है तो उससे पहले 1 घंटा आप न्यूज़पेपर पर जाइए, ठीक है। कई बार होते हैं, है ना, कई बार क्या होता है कि फर्स्ट सेकंड पीरियड वैकेंट होता है, फोर्थ में अगेन क्लास होती है, तो वो जो थर्ड बीच में वैकेंट पीरियड आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं पढ़ने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जीएस के लिए आपको क्या करना है कि हर सब्जेक्ट की एक स्टैंडर्ड बुक बना लीजिए। डोंट गो विद मोर नंबर ऑफ बुक्स, है ना। choose one standard book for each subject, like for modern history you can choose one standard book, let's say Spectrum, है ना। for polity let's say Lakshmikant is there। तो एक स्टैंडर्ड बुक हर सब्जेक्ट की आप चूज कर लीजिए, उसको पढ़िए और उसको कंटिन्यूअसली रिवाइज कीजिए। कई बार कुछ ऐसे सब्जेक्ट हो सकते हैं लाइक से इकोनॉमी और ज्योग्राफी, जो कि थोड़े से टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं जिसमें टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, और अगर वो बुक से आपको समझ नहीं आते तो आप उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए कुछ वीडियो लेक्चर्स जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, यू कैन गो फॉर दैट। इफ रिक्वायर्ड यू कैन गो विद कोचिंग आल्सो इन जीएस सब्जेक्ट्स, है ना। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो कैसे हैंडल करना है, तो वो चीजें हम देख सकते हैं इस केस में। Then Gaurav Kumar has one more question, sir, as you give all these exams based on your belief, please arrange those exams according to difficulty level। ओके फाइन, अगेन डिफिकल्टी लेवल से अगेन मुझे अगर इनको अरेंज करना है तो सबसे कम डिफिकल्टी लेवल का जो इजीएस्ट लेवल पे मैं गेट को रखता हूँ, सेकंड डिफिकल्टी लेवल इज इंजीनियरिंग सर्विस एंड थर्ड सिविल सर्विस, डेफिनेटली इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम, है ना। देन देवेश तिवारी हैज सेड फॉर मेंस और प्री कोचिंग इज नेसेसरी और बाय सेल्फ स्टडी सफिशिएंट। ये मैंने पहले ही आपको आई थिंक इससे पहले एड्रेस कर दिया इस क्वेश्चन को, कि डिपेंड करता है आपके ऊपर। पहले बुक से पढ़ने की कोशिश कीजिए, सेल्फ स्टडी करने की कोशिश कीजिए, अगर होता है तो अच्छा है। अदरवाइज अगर कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट बचते हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, फॉर दो सब्जेक्ट यू कैन टेक गाइडेंस। अगर आपको फिर भी पूरा लग रहा है देन यू कैन टेक कोचिंग ऑल्सो, है ना, देयर इज नो हार्म इन दैट। Last question that I can take today is this, sir, how to prepare for essay in UPSC CSE? Is English important for interview in UPSC CSE? Okay, fine. First, let me take this question, that whether English is important for interview in UPSC CSE? No, it is not necessary. आपका ऑप्शन है कि अगर आपने मेंस इंग्लिश में लिखा है देन स्टिल यू कैन गिव योर इंटरव्यू इन हिंदी, है ना। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी प्रॉब्लम है, वैसे तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ा इंप्रूव कीजिए इस बीच में, बट स्टिल देयर इज एन ऑप्शन कि आप हिंदी में एग्जाम इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है।
सो ये एक बहुत बड़ा इशू नहीं है। जहां तक एसए की बात है, एसए प्रिपरेशन सबसे लास्ट में आती है। पहले आप सारा जीएस प्रिपेयर कर लीजिए, GS1, GS2, GS3 और GS4। एसए के लिए कोई स्पेशलाइज्ड प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कंटेंट आपको बनाना है और वो कंटेंट जीएस पेपर के साथ आपका बन जाएगा। एक बार सारा कंटेंट बन गया, देन जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, आप ऑनलाइन जाइए, 3-4 टॉपर्स के ऐसे पढ़ लीजिए कि ऐसे लिखते किस तरीके से हैं। जस्ट यू हैव टू रीड दोज एसेस, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओके किसी टॉपिक पे ऐसे कैसे लिखना है। 4 या 5 एसेस पढ़ लीजिए, उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए 3-4 एसेस की, दैट वुड बी सफिशिएंट। सो आई थिंक दिस इज Okay. all. Okay. I think time is already over, Mr. Yes, Mayank. yes. Oh, okay. So thank you, Mr. Mayank, for such an informative session. Hopefully, our participants got answers of most of their questions and queries and have attended a very fruitful discussion, obviously. Now, I want to invite Mr. Piyush to deliver a vote of thanks. Mr. Piyush. Okay, thank you, sir, for such an informative session. So, good evening to all of you. I, Piyush Kumar Misra. It is my privilege to get an opportunity to extend a vote of thanks. On behalf of IEEE MNIT student branch, I convey my extreme thankfulness to our Honorable Director, Professor Rajiv Tripathi, sir, who has given his consent and blessing to organize this webinar. Further, I convey my deep regards and hearty thanks to Mr. Mayank Mittal, who, despite his very busy schedule, accepted our invitation as a speaker. We are highly motivated by his gracious presence and inspiring address. Thank you, sir. Now, express my sincere thanks to Dr. Mayank Pandey, sir, the counselor of IEEE MNIT student branch, for his consent, support, and convenience for the smooth conduct of the webinar. I further thank to Professor V.S. Tripathi, sir, advisor of MTT and APS Society, and also convener of this event for this his direction, guidance, and providing simulating environment for organizing the webinar. Now, I thank to all participants for their patience and cooperation with joined this webinar from different region of country. IEEE is a professional society for you and by you. It is your support that keep us motivated and energized. Moreover, my sincere thanks to IEEE MNIT student branch and Cisco WebEx Meet for providing their platform. A special thanks to is due to volunteers Dr. Dr. Nankishore sir, Vikrant sir, Prateek sir, Saurabh sir, Diksha, Aditya, and Kumar Mohit. These volunteers worked very hard to make this event a success. Last but not the least, we thank the Almighty God for enlightening the path of the wisdom for us. Thank you all. Thank you, sir. Thank you very much.